Hello. So I hope that you have completed that sum which were given as homework, right? I have sent the solution also. So now we will do question number 6. Question number 6 we have 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 plus n into n plus 1 is equal to n into n plus 1 n into n plus 1 into n plus 2 by 3. ओके ये डॉट नहीं है, मीन्स डॉट है लेकिन ये पॉइंट नहीं है, 1.2 नहीं है, 1 इंटू 2 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 लाइक दैट वे इट इज है 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस सो ऑन टिल n इंटू n प्लस 1 इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 डिवाइड बाई 3. चलो तो स्टेप 1, put n equal to 1. Here if we keep n equal to 1, 1 into 1 plus 1, that is 2. Here if you keep n equal to 1, 1 into 1 plus 1, 1 plus 2, these 3, 1 plus 1, 2. Therefore, P of 1 is 2. Step 2. P of k. See, here in all the sums the method is same only. So you have to write that let P of k, that I have written in previous sum. Okay. Right now I am writing directly P of k is equal to, but you write in exam also and right now also write full statement, right? Like that. Let P of k be the means where k is the positive integer, right? That we have written in the previous sums, right? Let P of k be true. You have to write that let P of k be true for positive integer k. Therefore P of k is equal to 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 till k into k plus 1. Just wherever n is there you have to put k. That's it. Step 1, step 2 clear. Now step 3. P of k plus 1, 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 plus k into k plus 1 plus k plus 1 k plus 1 plus 1 so k plus 2. ठीक है, देखो मैंने क्या किया है, जो है ना उसमें वहां पे n की जगह पे k रख दिया, लेकिन k प्लस 1 k के बाद क्या आएगा k प्लस 1, तो k प्लस 1 और k प्लस 1 प्लस 1 सो k प्लस 2. और इसकी जो वैल्यू है दैट इज व्हाट, k into k plus 1 k plus 2 by 3, that is k plus 1 k plus 2 by 3 plus k plus 1 k plus 2. ठीक है, चलो तो I hope that this much is clear. Now the answer is still remaining. Okay, I am erasing this much. From here k plus 1 common, k plus 1 into k plus 2, k plus 1 k plus 2 common. Here
k by 3 here plus 1. So k plus 1, k plus 2, k plus 3 by 3. That's it. This is our answer. See, k plus 1, k plus 1 plus 1. K plus 1 plus 2 and whole divided by 3. ठीक है, यही तो हमें लाना था। इंस्टेड ऑफ एन के प्लस 1 है, जहाँ पे भी के प्लस 1 है अगर आप एन रख दो तो हमारा आर एच एस आ गया, राइट। मैंने कुछ नहीं किया है, के प्लस 2 को लिखा के प्लस 1 प्लस 1 सो के प्लस 2, के प्लस 3 को लिखा के प्लस 1 प्लस 2 सो के प्लस 3 एंड मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड बाई 3 मतलब होल डिवाइड बाई 3 तो भी सही है, मल्टीप्लाई में है इसीलिए लिख सकते हैं, राइट। यस, सो दिस इज आंसर नंबर 6. सी, बाई doing this all the sums you came to know that these all the sums are having only same method, same formula. ये चैप्टर में कुछ भी खास मतलब उतना कुछ टफ जैसा है ही नहीं, एक ही मेथड है, आपको वही मेथड को फॉलो करनी है। यहाँ पे आपको ट्रिक यूज़ करके क्या करना है कि कौन सा कॉमन आएगा, क्या करना है, एलसीएम कब लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई है, व्हाटसोएवर, सो यू विल गेट द आंसर, ठीक है। बाकी कोई भी मेथड डिफरेंट नहीं है, अगर डिफरेंट मेथड आएगी तो मैं आपको बता दूंगा, राइट। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 7 आई हैव सेंट यू द सॉल्यूशन, यू ट्राई टू डू ऑन योर ओन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8. One into 2 plus 2 into 2 square plus 3 into 2 square plus n into 2 power n is equal to n minus 1 2 raised to n plus 1 plus 2. ठीक है, दिस इज अवर क्वेश्चन। तो चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल विल कीप स्टेप 1 n equal to 1. 1 into 2 power 1 means 2 1. Here 1 minus 1 2 raised to 1 plus 1 plus 2, तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 plus 2 0. Therefore P of 1 is true. Step 2. One into 2 plus 2 into 2 square plus 3 into 2 square till k into 2 power k is equal to k minus 1 2 power k plus 1 plus 2. ये प्लस 2 जो है सेपरेट है, 2 रेज टू के प्लस 1 वो पूरा सेपरेट है, के माइनस 1 इंटू 2 रेज टू के प्लस 1, और ये प्लस होल प्लस है, ऊपर रेज टू प्लस नहीं है। तो अब तक तो कुछ नहीं था, सिर्फ एन की जगह पे 1 रखा, वो स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में सिर्फ एन की जगह पे के रख दिया, ठीक है, तो पी ऑफ के हो गया। तो अब स्टेप 3 P of k plus 1, तो ये जो है सेम एज इट इज, ठीक है। नाउ आई एम यूजिंग शॉर्टकट मेथड। सी, P ऑफ k के बाद ही P ऑफ k प्लस 1 आएगा, तो P ऑफ k मैंने जो राइट हैंड साइड है वो सेम टू सेम आई हैव रिटन ओवर हियर, k माइनस 1 2 रेज टू k प्लस 1 प्लस 2। अब उसके बाद प्लस यहाँ पे जो है k प्लस 1, हैव यू गॉट व्हाट आई हैव डन। देखो, इसके पहले का एक स्टेप आता है, दैट इज दिस इज सेम, और उसके बाद प्लस
ये स्टेप आएगा, तो उसकी जगह पे डायरेक्टली मैंने ये लिख दिया, राइट, एवरीथिंग इज सेम। चलो तो अब कैसे करेंगे? टू रेज टू के प्लस वन कॉमन, तो ब्रैकेट में आएगा के माइनस वन प्लस के प्लस वन प्लस टू सेपरेट, तो टू रेज टू के प्लस वन माइनस वन प्लस वन कैंसिल, के प्लस के टू के प्लस टू, तो टू के मल्टीप्लाइड बाई टू रेज टू के प्लस वन प्लस टू, तो के को अगर मैंने साइड में ले लिया, टू रेज टू वन प्लस के प्लस वन प्लस टू, तो टू रेज टू के प्लस टू इंटू के प्लस टू, तो टू रेज टू के प्लस वन और के प्लस वन सी यू सी द RHS। मैंने इसमें कुछ ये स्टेप और ये स्टेप सेम है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ। टू रेज टू के प्लस टू, ठीक है, के प्लस टू, तो प्लस टू को मैंने लिखा वन प्लस वन, ठीक है, यहाँ तक के। अगर मैं किसी भी चीज़ में प्लस वन ऐड करूँ और उसको माइनस वन कर दूँ तो सेम ही रहेगा ना, के प्लस वन और माइनस वन, तो ये के ही रहेगा, प्लस टू एज इट इज, सिंपल, राइट। चलो तो नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। वन बाई टू प्लस वन बाई फोर प्लस वन बाई एट प्लस वन बाई टू रेज टू n इज इक्वल टू वन माइनस वन अपन टू रेज टू n। ठीक है, दिस इज अवर रिक्वायर्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है हमारा। तो फर्स्ट स्टेप वन n इक्वल टू वन, तो वन अपन टू रेज टू वन मीन्स वन बाई टू, एंड वन माइनस वन अपन टू रेज टू वन, वन माइनस वन बाई टू, वन में से हाफ गया तो हाफ, स्टेप टू स्टेप टू में क्या करना है, वेर एवर n इज देयर जस्ट कीप k, तो p ऑफ k वन बाई टू प्लस वन बाई फोर प्लस वन बाई एट प्लस वन अपन टू रेज टू k। Now step 3, p of k plus 1, this I am writing as it is, 1 minus 1 upon 2 raised to k plus 1 upon 2 raised to k plus 1। ठीक है, see this also I am writing as it is, 1 minus 1 upon 2 raised to k plus 1 upon 2 raised to k into 2 raised to 1, तो 1 minus 1 upon 2 raised to k common, 1 minus 1 by 2, तो 1 upon 2 raised to k, 1 minus 1 by 2 means half, half means
1 by 2. So 1 minus 1 upon 2 raised to k plus 1. This is our required answer. Clear? I hope that you understood this sum. Question number 10 also you try to solve on your own. Question number 10. Right? So, today two questions. Question number 7 and question number 10. Actually, I have sent you the solution, so you try to do on your own. If you have any confusion, then you ask me. Okay? Thank you very much. Have a great day.